Okay, friends, so let us talk about the National Legal Services Authority, NLSA. सो कल जो हमने पढ़ा था, जो 3 लेवल्स पढ़े थे, उसमें किसी को डाउट है? इज देयर एनी डाउट इन द 3 लेवल्स दैट वी हैव रेड ऑफ द जुडिशरी, SC, HC एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्ट्रक्चर? सो उसके बाद जो है, व्हाट वी हैव हियर इज द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. सो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का मैंडेट क्या है, व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश? तो आर्टिकल 39A. तो आर्टिकल 39A का मतलब क्या है? ये कहां पर आ जाएगा? वेयर इट विल फॉल? वुड इट नॉट फॉल इन द DPSP सेक्शन? यस, इट इज गोइंग टू फॉल इन द DPSP सेक्शन. तो जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, it was done to fulfill, or it was established to fulfill the mandate of article 39A. एक और चीज इसमें क्या पता चलती है, दिस इज अ DPSP, बट ऑल्सो व्हाट, it has been added via amendment. It was not present in the original constitution. Okay. So Legal Services Authority Act 1987 was enacted. So you see here that to basically initiate, okay, to basically initiate an amendment, or to basically initiate or execute a mandate, you are doing what? You are introducing a legislative रिफॉर्म. मतलब लेजिस्लेशन के थ्रू जो है, आप DPSP को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. यू आर इनिशिएटिंग ए लेजिस्लेटिव टूल, आप ऐसे कह सकते हो, या लेजिस्लेचर के थ्रू आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एग्जीक्यूट कर रहे हो. ठीक है. सो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 ये आया था. It was enacted in 1987 and then it was implemented in 1995. इसका पर्पस क्या है? टू एस्टैब्लिश ए नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ ऑफरिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. Now the problem is, see, when you are rich, you can hire a very good lawyer, very expensive lawyer who will, go through the entire thing, your entire case, and he will help you in any matter possible. But is this luxury present to the poor? Because the poor cannot do it. Poor does not even have 200, 300 rupees. Okay. So Article 39A along with Article 14 and 22 Clause 1 of the Indian Constitution, it provides the constitutional basis to this National Legal Services Authority. Okay. क्या ये चीज क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन कैसे है? तो ये बेसिकली मल्टीपल लेवल्स पे काम करता है. सबसे ऊपर में यू हैव द नेशनल लेवल. You have what? You have the national level. Below that, you have the state level. उसके नीचे जो है, you have the district, और फिर उसके नीचे सब डिस्ट्रिक्ट या तालुक लेवल जो है आ जाता है. तो होता है यहां पर क्या है? यहां पर होता है कि सपोज आपको जो है, ओके, नेशनल लेवल से पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है और उसके बाद नीचे जाती है कि कैसे हेल्प करना है, how to help. All right. So National Legal Services Authority constituted under the Legal Services Authority Act. So ये जो authority है, National Legal Services Authority, it is what kind of a body? This becomes what kind of a body? Statutory body, because it has the backing. Can I say that it has the backing of the Legal Services Authority Act 1987? Yes. Okay. So it oversees the implementation of legal aid program and formulate policies and principles for legal services. State Legal Services Authority and High Court Legal Services Committee have been established to implement NALSA's policy and directive at the state level. तो यहां पर जो है स्टेट लेवल पे आपके पास क्या होती है? SLSA प्लस HCLSC, दैट इज हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. अब जैसे आपने अगर कभी देखा होगा लीगल प्रोसीडिंग, तो उसमें अगर बहुत गरीब आदमी आता है
if a very very poor person comes, so in that case, what happens is that the judge says that, why you are representing yourself? Where is the petition? He says कि, हुजूर मुझे नहीं पता. I don't know how to, file a petition, and I have come here. I cannot, पैसा कहाँ से मैं दूंगा? So what does the judge say? आप 4 दिन के बाद आइए, एंड आई एम पासिंग एन ऑर्डर कि आपको जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से एक आपको जो है हेल्प मिलेगी. हेल्प मतलब उसमें से कोई लॉयर जो होगा वो यहाँ पर काम करेगा आपके लिए. ओके. सो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फिर होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी होती है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज एंड टू कंडक्ट लोक अदालत. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो लोक अदालत है ना, ये क्यों होता है? वाई डू वी हैव लोक अदालत? उसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए, बहुत सारी चीजें जो होती है ना, दोज थिंग्स आर बेसिकली दे कैन बी फिक्स्ड. ओके, दे कैन बी फिक्स्ड. जैसे नेबर्स के बीच में डिस्प्यूट है किसी दीवार को लेके, समथिंग लाइक दिस. सो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें जो है, उसने उसको धक्का दे दिया है ना, समथिंग लाइक दिस. तो ये सारी चीजें जो है, दे कैन बी मैनेज्ड इन अ नॉन लीगल वे, मतलब एक स्ट्रिक्ट लीगल वे में जो है, उससे बाहर आप उसको मैनेज कर सकते हो. तो इसीलिए ट्राई किया जाता है कि कितनी चीजें हम कर सके. ओके, अंडर द एडीआर. व्हाट इज एडीआर? व्हाट इज द एडीआर? एडीआर का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल. ओके, इसका मतलब होता है कि जो नॉर्मल, व्हेन नॉर्मल कोर्ट जो होता है ना, जब हम नॉर्मल कोर्ट की बात करते हैं, तो इट इज वेरी रिजिड एंड इट लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशनशिप्स. अगर मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा, तो देर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशनशिप परमानेंटली एंड इट विल ड्रैग ऑन. सो उसके वजह से क्या होता है, पीपल कैन नॉट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ये एक बहुत बड़ा एक लाइन है विच इज यूज्ड बाय द कोर्ट. अभी एक केस आया था, उसमें एक टीचर ने बच्चे को मारा था थप्पड़. ओके, थप्पड़ मारा था फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क, और वो 2013 का केस था. वो केस कब का था? 2013 का केस था. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये कहा दैट बोथ द पिटिशनर एंड द अक्यूज्ड, दे वांट टू मूव अहेड इन लाइफ. This was, this slap was given out of, it was not given out of any malice. It was basically given, because the teacher was too involved. So it is important that we bury the hatchet and we move forward in life. So ये move forward in life is not possible when you are locked in legal battle. अभी भी आप देखते हो बहुत सारे लोग 1900s का केस लेके घूम रहे हैं. 1920, 1930 जो उनके ग्रैंडफादर्स केस लड़ रहे थे, उस केस को उन्होंने कंटिन्यू किया. द ओरिजिनल लिटिगेंट्स दे हैव पास्ड अवे. तो इससे क्या होता है, देयर इज अ, फर्स्ट ऑफ ऑल, बैकलॉग ऑफ केसेस. देयर इज ए बैकलॉग ऑफ केसेस, और उसके साथ साथ व्हाट वी ऑल्सो हैव ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशनशिप्स विच लीड्स टू पुअर सोशल कोहेजन. आई कैन से लाइक दिस. तो इसके लिए जो है, दे हैव इंट्रोड्यूस द एडीआर मॉडल, दैट इज द ऑल्टरनेट, ओके, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मॉडल. ओके. और ये जो आपका नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुक लेवल पे चलता है, तो जैसे मान लिया कोई सुप्रीम कोर्ट गया बंदा, गरीब आदमी, एंड ही इज नॉट एबल टू गिव द फीस ऑफ द एओआर, ही इज नॉट एबल टू गिव द फीस ऑफ द एडवोकेट्स. सो उस केस में जो है, उसको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वगैरह हेल्प करेंगी कि आप जो है इसमें, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दीज सर्विसेज. देन इसका फंक्शन क्या होता है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी विच ऑपरेट्स एट मल्टीपल लेवल, उसका जो फंक्शन होता है, दे विल प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज. उसके बाद लोक अदालत जो है, इट विल बी ऑर्गेनाइज फॉर एमिकेबल डिस्प्यूट सेटलमेंट.
Then legal awareness camp which will be held in rural areas to enhance legal awareness. अब legal awareness क्या है? जैसे people have to be told about their fundamental rights. People have to be told about their constitutional and legal rights. Do you think it is possible for a simpleton, for a farmer from a rural areas to know what is Article 23 and he cannot be forced into labor? He cannot be pushed into forced labor. नहीं पता है, तो इसीलिए जो है ये लोग घूम घूम के लीगल अवेयरनेस कैंप्स चलाते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम यू आर हैविंग एंड दिस हैज अ लीगल सॉल्यूशन. You don't need to worry. This is something that can be solved. Okay. Eligibility for free legal services. So please remember, this is something which was there in uh 2020 prelims. Okay, this was there in 2020 prelims. So इसमें क्या होता है? Women and children, members of SC ST, scheduled caste and scheduled tribe, industrial workers, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर. इंडस्ट्रियल डिजास्टर तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में कह सकता हूं दैट पीपल फ्रॉम भोपाल गैस ट्रेजेडी दे विल गेट दिस हेल्प. देन वायलेंस, फ्लड्स, ड्रॉट, earthquake, disabled person, persons in custody, individuals with an annual income not exceeding 1 lakh in normal cases and 5 lakhs for Supreme Court Legal Services Committee cases. मतलब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में महंगा है. द सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालना, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना, इट्स अ वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर, एंड दैट इज व्हाई द लिमिट इज हायर इन द सुप्रीम कोर्ट केसेस. देन विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगरी. तो ये जो है, ओके, ये जो है आप में, इसमें एक और चीज है दैट यू गाइज रिमेंबर दैट वाज देयर इन द यूपीएससी क्वेश्चन. तो उसमें इसमें ट्रांसजेंडर्स आ सकते हैं क्या? इसमें ट्रांसजेंडर्स, डू दे ऑल्सो हैव द एक्सेस इन द फ्री लीगल सर्विसेज? जो फ्री लीगल सर्विसेज है उसको लेने के लिए ये जो कौन कौन एलिजिबल है, तो उसमें हमने ये देखा कि somebody who is an SC or ST, somebody who is an industrial worker, women and children are eligible, victims of human trafficking are eligible. But you have to see whether, okay, whether people, okay, people who are transgender, are they eligible? ओके, तो एक बहुत फेमस केस था 2016 में, यस, 16 में एक बहुत फेमस केस था कि ये जो ट्रांसजेंडर जो है, ओके, ट्रांसजेंडर जो है, यहाँ बेसिकली उनको भी इन सर्टेन केसेस दे आर आल्सो अलाउड. ठीक है, ऑलराइट. एक केस आया था 2014 का, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें दैट वाज ए एनएलएसए केस, बट उसमें थर्ड जेंडर को रिकॉग्निशन मिल गई और ये कहा गया था कि ट्रांसजेंडर ऑल्सो हैव देयर फंडामेंटल राइट्स. तो दैट वाज ए लैंडमार्क केस. इसका मतलब क्या था? एक दो यहां समझिए, 2014 में देयर वाज अ केस कॉल्ड एनएलएसए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, and in this case the Supreme Court has recognized that a third gender exists. ये जो थर्ड जेंडर है ये एग्जिस्ट करता है और ये इसका फंडामेंटल राइट जो है वो भी एग्जिस्ट करता है. और उस केस में जो है, उस केस में मेनी ऑफ द स्टेट लीगल सर्विसेज दे इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर. अब जैसे दिल्ली जो है, ओके, दिल्ली जो है उसका जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वहां पर ऑल ट्रांसजेंडर जिनका एनुअल इनकम 2 लाख से कम है उनको अलाउ कर रहे हैं. ओके, और दूसरे दूसरे स्टेट्स में भी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में दे आर ऑल्सो, ओके, दे आर ऑल्सो हैविंग दिस. ठीक है, ऑलराइट. तो पर्सन, देखिए, पर्सन इन कस्टडी जैसे हुआ, इसमें कौन आ जाएगा? इसमें जैसे कि आपका जुवेनाइल्स आ जाएंगे, आपके जुवेनाइल्स आ जाएंगे, पीपल हु आर इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, ओके, people who are
दे आर इन प्रोटेक्टिव होम्स। ओके, तो ये लोग जो है वो आ जाएंगे क्या? मुकेश अंबानी या टाटा ग्रुप का कोई चेयरमैन, उसको मिलेगा? विल दैट पर्सन बी, ओके, विल दैट पर्सन बी देयर? ओके, नहीं मिलेगा। तो इसमें पर्सन इन कस्टडी में जो है जुवेनाइल होम्स में जो जो बंद है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में जो बंद है, ओके, और ये सारे लोग जो हैं, या आप ऐसे कह सकते हो जो इमोरल ट्रैफिक से, ओके, इमोरल ट्रैफिक जो है, तो इसका कस्टडी का मतलब ये नहीं है लीगल कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। आप समझ रहे, कस्टडी का मतलब दूसरा है। कस्टडी का मतलब है, जैसे मान लिया कि लेटस से किसी इंडिया के पार्ट से 30 गर्ल्स आर बीइंग ट्रैफिक्ड, 30 गर्ल्स आर बीइंग ट्रैफिक्ड, और उनको इनको इंटरसेप्ट कर लिया दिल्ली में। उनको जो है बेसिकली फॉर ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए लेके आ रहे थे। उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया और उनको जो है प्रोटेक्टिव होम्स में डाल दिया गया। और प्रोटेक्टिव होम्स कहाँ से बने हैं? प्रोटेक्टिव होम्स आर फाउंडेड अंडर द इमोरल ट्रैफिक एक्ट। और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो मैंने पढ़ाया था, याद होगा आपको, आर्टिकल 23 के अंदर, उसके अंदर दे विल बी इन कस्टडी। तो ये कस्टडी पॉजिटिव कस्टडी है या नेगेटिव कस्टडी है? नेगेटिव कस्टडी है कि किसी ने कुछ क्राइम किया और उसको फिर पकड़ के जेल में डाल दिया, या उसको जुडिशियल कस्टडी या पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड जुडिशियल कस्टडी की हम बात नहीं कर रहे। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन इन कस्टडी आर एलिजिबल, I am talking about people who are immorally trafficked, they are saved and then they are put in custody homes। तो वो जो केस लड़ेंगे अपने अब्यूजर के अगेंस्ट, वो उनको हेल्प मिलेगा नालसा से, सालसा से, या डीएलएसए से, ओके, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से। उसके बाद सपोज अ पर्सन, अ किड इज देयर and his parents are very abusive and that kid was rescued and put in a juvenile home, ओके, और सम प्रोटेक्टिव कस्टडी। या दूसरी चीज ये है कि कोई 14 साल 13 साल का बच्चा है, उसको पकड़ लिया गया किसी क्राइम के लिए। सो डज दिस पर्सन इज फुल्ली डेवलप्ड पर्सन, 13 year old कमिटिंग सम क्राइम, कैन ही बी हेल्ड लायबल फॉर द क्राइम ही हैज कमिटेड? इसको समझ है? तो इसको भी हेल्प होगा एनएलएसए, एसएलएसए और डीएलएसए से, इसको इसका केस समझने के लिए। तो जो भी जुवेनाइल होम्स में डाला जाएगा अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। उसके बाद जो थर्ड है, आप अगर मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर देखेंगे, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में जिनको डाला जाएगा, ओके, जो साइकेट्रिक मेंटल कंडीशन से सफर कर रहे हैं, सो दोस पीपल, ओके, दोस पीपल विल ऑल्सो बी देयर। तो यहां कस्टडी जब मैं कहता हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव कस्टडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल कस्टडी। क्रिमिनल कस्टडी जो होता है, यू आर अडल्ट 18+, यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड देन यू आर सेंट इन पुलिस रिमांड, वहां पर फिर आपकी इनकम देखी जाएगी। इन दैट केस योर इनकम विल बी सीन and other metrics will be seen before providing you free legal services. Here what is going to happen in the custody wala thing, people who have been immorally trafficked, those people who are juvenile and they have maybe committed a crime or maybe they have been rescued from somewhere। तीसरा की चीज क्या है, अगर आप एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हैं, यू आर सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इलनेस, तब जो है आपको, एंड यू आर फाइटिंग सम केस, इन दैट केस यू विल बी ग्रांटेड द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। ये ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये हेल्प होता है। देखिए, इसमें दो दो टाइप के लोग होते हैं। इसमें जो लॉयर्स होते हैं, ओके, लॉयर्स होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट। अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे तो इसके थ्रू जो है, एनएलएसए के थ्रू आपको मिल जाएगा लॉयर एक, और वो जो है आपकी हेल्प करेगा केस लड़ने में, ओके। और हु इज द चेयरमैन, ओके, हु इज द चेयरमैन ऑफ एनएलएसए, एनी आइडिया? एनएलएसए जो है उसका चेयरमैन कौन है? तो बेसिकली जो है, यस, बेसिकली जो है, आप ऐसे कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ओके, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अभी मिस्टर बी आर गवई, सॉरी, जस्टिस बी आर गवई है, ओके। कौन है? जस्टिस बी आर गवई, ऑल राइट। तो ये जो है
ओके, ये जो है जस्टिस बी आर गवई, ही हैज बिकम द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ही हैज बिकम व्हाट, ही हैज बिकम द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एनएलएसए। ओके, तो ये चेयरमैनशिप जो है, ओके, ये चेयरमैनशिप जो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि देयर विल बी ए चेयरमैन जो ये सारी चीजें देखेगा। ओके, ये सारी चीजें जो है वो देखेगा कि कैसे, ओके, कैसे जो है नीचे का काम हो रहा है, और जो रूल्स बनेंगे, ओके, दे विल हैव टू बी एग्जीक्यूटेड, कि किसको किसको जो है फ्री लीगल सर्विसेज दी जाएगी। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, ऑल राइट, देन लेट अस टॉक अबाउट द लोक अदालत। तो लोक अदालत का मतलब क्या होता है? पीपल्स कोर्ट। ओके, पीपल्स कोर्ट, और ये क्या है? सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो एडीआर सिस्टम इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन योर जीएस टू पॉलिटी। ओके, एडीआर क्वेश्चन जो है इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर थिंग इन योर जीएस टू पॉलिटी। क्वेश्चन पूछता है कि कैसे क्या क्या हो रहा है इंडिया में, एंड व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड इन द एडीआर, और व्हाट व्हाट ऑलरेडी इज बीइंग डन, उसको आपको एन्यूमरेट करना होता है। ओके, सो ये चीज जो है, ये चीज जो है आपको देखनी है कि लोक अदालत है क्या। लोक अदालत इट्स अ हिंदी वर्ड विच मीन्स पीपल्स कोर्ट। ओके, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स people's court, or they are a significant element, okay, they are the significant element of the alternative dispute resolution system. Okay, and they offer informal, cost effective and expeditious method for resolving disputes either pending in court or which are at the pre litigation stage। ये ध्यान से देखिए, पेंडिंग इन कोर्ट और एट द प्री लिटिगेशन स्टेज। तो ये क्या मर्डर, रेप, रॉबरी, ये सारी चीजों में कर सकता है हेल्प आपको? नहीं। ये किस टाइप के केसेस में हेल्प कर सकता है? केसेस विच आर नॉट दैट सीरियस इन नेचर। केसेस विच आर नॉट दैट सीरियस इन नेचर। ओके, ये जो है आपको बहुत ज्यादा हेवी केसेस में हेल्प नहीं करेगा। ये किस में हेल्प करेगा मैं बता देता हूं आपको। सो लोक अदालत आपको सिविल केसेस में हेल्प करेगा। एनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट, ओके, चाचा जी मुंह फुलाए हुए हैं, फूफा जी मुंह फुलाए हुए हैं, बुआ मुंह फुलाई हुई हैं, उस टाइप के केसेस। उसके साथ साथ एनीथिंग रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आपने कोई सर्विस लिया किसी से, वो सर्विस आपको पसंद नहीं आई, या सर्विस प्रॉपर नहीं दी गई, समथिंग लाइक दिस। ओके, वो। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स? फैमिली डिस्प्यूट्स। ओके, बीवी और शौहर एक साथ नहीं रहना चाहते, बच्चे का क्या होगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, उसके बाद एनी काइंड ऑफ लेबर डिस्प्यूट, मालिक ने पैसा नहीं दिया। ओके, उसके साथ साथ बैंक रिकवरी, बजाज फाइनेंस से लोन लिया था 4,000 का, वो वापस नहीं किया। ओके, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल बहुत ज्यादा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मान नहीं रहा, समथिंग लाइक दिस कैन बी सॉल्व बाय द लोक अदालत। One more thing that can happen with Lok Adalat is it can settle the compoundable criminal offenses. What is this? Any idea? ये कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है? तो यहां पर जो है ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस, ओके, ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस जिनको लॉ खुद परमिट करती है कि आप वो सेटल कर सकते हो अपने बीच में। ओके, मतलब इन द कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस द कंप्लेनेंट and the accused both can enter into a compromise। और ये कहां पर मेंशन्ड है? कहीं मेंशन्ड है कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस? ओके, ये मेंशन्ड है सीआरपीसी के सेक्शन 320 में। उसमें होता क्या है? इसमें ये होता है
कि जैसे ही आप कॉम्प्रोमाइज एंटर करते हैं क्रिमिनल केसेस में, तो व्हाट हैपेंस, द चार्जेस आर ड्रॉप्ड। जो क्रिमिनल चार्जेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्रॉप होता है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, क्या इसमें, इसमें आपका रॉबरी आएगा, इसमें आपका मर्डर आएगा। क्या सपोज अ पर्सन हैज बीन मर्डर्ड, हिज सन, कैन ही एंटर इनटू ए, कैन ही एंटर, यू नो, समथिंग, यू नो, इन सम काइंड ऑफ केसेस। ओके, और कह सकता है क्या कि ठीक है मेरे फादर को मार दिया, लेकिन ठीक है मुझे 2 लाख रुपए दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज रिमेंबर दिस कैन नॉट हैपन। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो है दोस्त, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस विच कैन बी ऑफसेट विदाउट कोर्ट परमिशन, और एक होता है विथ कोर्ट्स परमिशन। एंड देन देयर आर ऑफेंसेस विच आर नॉन कंपाउंडेबल, मतलब उनको जो है आप सेटल नहीं कर सकते, दे हैव टू गो थ्रू। तो विदाउट कोर्ट परमिशन कौन कौन सी चीजें आप जो है कर सकते हो सेटलमेंट? सेक्शन 320, सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी 1973 इट इज रिटन। ओके, तो यहां पर, यहां वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, मतलब आप खड़े थे, मैंने आपको एक झापड़ खींच दिया, ठीक है, या आपने मुझे एक झापड़ खींच दिया, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मेरा बस इमोशंस हर्ट हुआ। हाँ, बैटल ऑफ बागपत, यस, जो बैटल ऑफ बागपत नहीं था, चाट भंडार वाले बैटल है, तो क्या वो कंपाउंडेबल है? इज दैट कंपाउंडेबल? यस, दैट इज कंपाउंड। ओके, वो मीम है, वो कुछ सीरियस कुछ नहीं है। ओके, सो इफ यू आर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, तो फिर दैट कैन बी कंपाउंडेड। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मतलब आपको किसी टीचर ने बंद कर दिया, या आप गए कहीं पे और आपको अंदर में बंद कर दिया। ओके, उसके बाद क्रिमिनल ट्रेसपास, जैसे मतलब क्या होता है क्रिमिनल ट्रेसपास का, आपने किसी के बाग से बगीचे में घुस गए चोरी करने के लिए कुछ आम वगैरह। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स, ओके, किसी के प्रॉपर्टी में घुस गए, ओके, किसी के प्रॉपर्टी में घुस गए, ऑलराइट, तो वो सब आप बिना कोर्ट के पूछे सेटल कर सकते हैं, ये सेटल हो जाते हैं। ओके, रॉबरी इज अ सीरियस ऑफेंस। ओके, दूसरा है कि कुछ ऐसे कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें कोर्ट का परमिशन लेना होता है टू सेटल, जिसमें होता है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। मतलब यहां देखिए, विदाउट और विथ कोर्ट परमिशन में क्या डिफरेंस है। विदाउट कोर्ट परमिशन में वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, और यहां ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। आपने मुझे एक झापड़ खींच के दिया, मेरा, मुझे दर्द नहीं हुआ, या मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मेरा इमोशंस हर्ट हुआ, सो दिस इज वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। आपने मुझे मारा, ओके, अब मैंने आपको मारा तो उससे क्या है, हड्डियां कुछ इंपैक्ट हुई, उसमें चोटें आई, एक्सरे कराना पड़ा, सो दिस इज वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, उसमें कोर्ट का परमिशन लेना है। दूसरा, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी वाले केसेस में, एंड एनी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो पहले क्या करना होता है, सेटलमेंट से पहले कोर्ट का परमिशन लेके आप सेटल करेंगे। ओके, और एक होता है विदाउट टेकिंग कोर्ट्स परमिशन, जहां पर किसी के बगीचे से तोड़ लिया कुछ, इस टाइप के छोटे मोटे केसेस में आप ऐसे भी सेटल कर सकते हैं। तो लोक अदालत में बोथ केसेस, दैट इज कंपाउंडेबल विदाउट कोर्ट्स परमिशन एंड कंपाउंडेबल विथ कोर्ट्स परमिशन, जो है वो सेटल हो जाता है। सेटल कैसे होता है, या तो माफी, लिखित की माफी, कुछ पैसे कॉम्पनसेशन, किसी का आपने पैर तोड़ दिया है तो उसको 50,000 1 लाख रुपए कि ये ले भाई तू अपना इलाज करा लेना, मैं माफी चाहता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, उसके बाद जो है, ये लोक अदालत में क्या नहीं हो सकता है, लोक अदालत में नॉन कंपाउंडेबल एक्ट्स कैन नॉट बी सेटल्ड। सो दीज आर एक्ट्स ऑफ सीरियस नेचर, एंड दिस रिक्वायर व्हाट, दिस रिक्वायर फुल जुडिशियल प्रोसेस। या तो आपका अक्विटल होगा, या तो आपका कन्विक्शन होगा। दिस हैज टू लीड टू अक्विटल और कन्विक्शन, इट कैन नॉट बी सेटल्ड थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट। ओके,
इसमें क्या होता है, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, डकैती, ये सारी चीजें होती है। दूसरा क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट, बहुत बड़ा केस होता है, समझिए यहां पर व्हाट आई एम सेइंग, नॉन कंपाउंडेबल केसेस आर इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब यहां समझिए कि अगर हम मर्डर को अगर कंपाउंडेबल में डाल दे और उसमें कहें कि ठीक है जो भी मर्डर हुआ है उसके फैमिली से समझौता कर लो, तो क्या वो मर्डरर को छोड़ना पब्लिक इंटरेस्ट में है? विदाउट गेटिंग हिम रिफॉर्म्ड, विदाउट गेटिंग द पर्सन रिफॉर्म्ड, क्या उस मर्डरर को छोड़ना नहीं? तो देखिए जेल होता क्यों है? वाई डज द जेल एग्जिस्ट? द जेल एग्जिस्ट सो दैट, ओके, उसके पीछे का एक रीजन है, जेल इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि आदमी रिफॉर्म हो जाए। एंड उसने अगर सजा काट ली है तो इसका मतलब वो रिफॉर्म हो गया है। और अगर कंपाउंडेबल केस है, अगर कंपाउंडेबल केस है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि उसको जेल में जाना या उसका अक्विटल होना जरूरी है, बिकॉज इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल, ओके, there can be no compromise possible, or complete trial is mandatory in the non compoundable case, okay? तो एग्जाम्पल क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था एक चीज के बारे में, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, याद है? वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, उसमें मैं इसी को यूज करके तीन केस आपको बता देता हूं जहां पर दो कंपाउंडेबल हो जाएगा और एक जो है आपका क्या हो जाएगा, नॉन कंपाउंडेबल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट में अगर नॉन कंपाउंडेबल विदाउट द कोर्ट्स परमिशन, थप्पड़ मारा मैंने खींच के, बस, और कुछ नहीं, उससे आपका कोई हड्डी वड्डी कुछ नहीं टूटा, आपका कुछ नहीं हुआ, तो ये जो है विदाउट कोर्ट परमिशन इट कैन बी सेटल्ड। वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट बट ग्रीवियस इन नेचर, मतलब मैंने आपको मुक्के मारे जिससे आपका हो सकता है कुछ नाक टूट गया या आपका कान कान के पास कुछ टूट गया, समथिंग लाइक दिस, ओके, तो दिस विल बी विथ कोर्ट्स परमिशन। बट वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट विथ डेंजरस वेपन, तो ये क्या कंपाउंडेबल होगा विथ और विदाउट कोर्ट्स परमिशन? वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट विथ डेंजरस वेपन, then this will not be compoundable. Why? Because now it has morphed into a public interest thing. Why? Because that person cannot be trusted with a weapon, okay, with, and he is violent beyond means। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इसका या तो अक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। ही कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉम्प्रोमाइज विद द पार्टी, ओके। रिस्ट्रेंट करना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करना, आपको किसी ने पकड़ लिया या अंदर बंद कर दिया, समथिंग लाइक दिस, ओके, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, वो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। बट किसी ने आपको किडनैप कर लिया, क्या उसको आप कर सकते हो लोक अदालत के थ्रू सेटल? नहीं, बिकॉज दिस इज अगेन इन पब्लिक इंटरेस्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है? क्या ये चीज क्लियर है? आप समझ गए व्हाट इज कंपाउंडेबल, व्हाट इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, ओके। टर्म लोक अदालत जो है उसका मतलब पीपल्स कोर्ट है। इट इज एन इंस्टीट्यूशन विद एंशियंट ओरिजिन इन इंडिया whose relevance and validity continue in modern times, and Supreme Court has recognized and explained the importance of lok adalat within the Indian legal framework, and it is based on the Gandhian principles। लोक अदालत जो है इट strives for what, amicable dispute resolution, and it avoids the winner loser paradigm to eliminate subsequent rancor among disputing parties। का मतलब क्या है, whenever the court is giving some order, acquittal का या conviction का, तो is there any winner or loser there? उस समय कोई विनर और कोई लूजर होता है? द आंसर इज यस ना। कोई तो अक्विट होगा, कोई तो एक पार्टी तो विनर होगी ना। वेन एवर अ फुल कोर्ट इज देयर, वेन एवर अ फुल कोर्ट प्रोसीडिंग इज देयर, तो somebody will win, somebody will lose, somebody will get acquittal, somebody will get convicted। यहां पर क्या हो रहा है लोक अदालत में, दैट nobody इज अ विनर, nobody इज अ लूजर, सो दैट बाद में देर इज नो बैड ब्लड बिटवीन द पार्टीज, देर इज अ कॉम्प्रोमाइज। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है।
लोक अदालत हैंडल केसेस पेंडिंग इन कोर्ट एज वेल एज प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स, facilitating their resolution through compromise or settlement in a non-adversarial manner. And these courts are designed to provide an alternative to the formal judicial process, and which is known for its procedural complexity and delays. चाचा की जमीन थी, उस पे बुआ ने कब्जा कर लिया। सो बुआ और चाचा बात नहीं कर रहे 50 साल से, 40 साल से। ओके, वाई? बिकॉज कोर्ट में स्टक है मैटर। लोक अदालत में गए, वहां पर जाके ये बोल दिया कि ठीक है, तू 25% रख ले, मैं 75% रखूंगी, समथिंग लाइक दिस। एंड देन बुआ के बच्चे और चाचा के बच्चे एक दूसरे के घर जाने लगे। समझ रहे हैं? वाई लोक अदालत इज देयर? वाई लोक अदालत इज देयर रादर देन गोइंग टू द कोर्ट, हम जो है लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं। ओके, एक फोरम दे रहा है। देयर वॉज ऑल्सो दिस केस, बड़ा फनी था। जो एक हस्बैंड था, एंड हिज वाइफ हैज आल्सो गॉन टू लोक अदालत, एंड वहां पर जाके कुछ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स गाया था। उसके बाद वो वाइफ अग्री कर गई थी घर जाने के लिए। वो देखा था, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। यस, उसमें सम चीजी बॉलीवुड सॉन्ग्स ही स्टार्टेड सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ द लोक अदालत, और वाइफ चली गई, फिर बोलती है कि हाँ मैं इसके साथ चल चल लूंगी, ठीक है। एंड वो जो है, इन दैट केस, अगर आप जाते कोर्ट में, तो कोर्ट में क्या होता है? बैड ब्लड। ओके, कोर्ट में जो है, वहां क्या होता है? वहां बैड ब्लड होता, एंड इट वुड हैव लेड टू इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज और इररिकॉन्साइलेबल डिफरेंसेस। लेकिन लोक अदालत में थोड़ा सा क्लाउन क्लाउन खेल के, क्लाउन बिहेवियर देख के, हमने जो है ये ले आए थे हम, ठीक है। So no winners or losers. So Lok Adalat system is unique in that it seeks to resolve disputes without creating a sense of victory or defeat among the parties. And this is alternative to formal judiciary, which is, which is very, very characterized by procedural delays, and it is cost efficient also. Okay. Lok Adalat जो है, it has gained acceptance across India as a viable alternative. तो लोक अदालत की फीस कितनी है? जो लोक अदालत है, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, उसकी फीस कितनी है? ओके, ऑलराइट। तो यहां पर जो है ऐसा कोई इम्पोजिशन नहीं होता है। ओके, कोर्ट फीस का इम्पोजिशन नहीं होता है। कोई भी जो आप, अगर यहां पर केस सेटल होगा, यहां पर जो लोक अदालत में केस सेटल होगा, उस केस में अगर हम देखते हैं कि अगर कोई फीस इन्वॉल्व है, कोई पैसा इन्वॉल्व है, तो उसमें जो कोर्ट फीस आपने पहले जमा कराई थी फॉर द फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस, इट इज रिफंडेड बैक टू यू। इट इज व्हाट? इट इज रिफंडेड बैक टू यू। आप जो है, आपको पैसा वो वापस मिल जाता है। जैसे क्या होता है कि व्हेन यू गो टू द कोर्ट, देन द कोर्ट आस्क्स यू टू डिपॉजिट सर्टेन फीस। ओके, आपको क्या कहता है कि आप जो है एक फीस कोर्ट में जमा करो, ताकि ये प्रोसीडिंग आगे बढ़े। वेराज लोक अदालत, इन लोक अदालत यू आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, आपको जो है लोक अदालत में किसी भी टाइप का फीस देने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां पर उसके साथ साथ देर इज ए प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी। लोक अदालत, दे आर नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड एंड द एविडेंस एक्ट। प्लीज रिमेंबर, लोक अदालत आर नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, याद है? कहीं और हमने पढ़ा था, एक्स वाई जेड इज नॉट बाउंड, एक्स वाई जेड इज नॉट बाउंड ट्राइब्यूनल्स। यस, वेरी गुड। और इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो नॉट बाउंड बाय द एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट के जो है, उसको भी वो ये नहीं मान सकते हैं, ये अपना प्रोसेस चला सकते हैं टू कम टू ए कॉम्प्रोमाइज। डू यू थिंक दैट इफ दे आर बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट, दे कैन कम टू ए कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज बैठ के बात करने से होता है। कोर्ट में, कचहरी के जैसे, जहां पर आप पिटिशन पिटिशन फाइल कर रहे हैं, एविडेंस लेके आ रहे हैं, लॉयर्स की जरूरत पड़ रही। ओके, और ये जो लोक अदालत है, इसका डिसीजन होता है, क्या ये फाइनल होता है? द आंसर इज यस।
लोक अदालत के जो डिसीजंस होते हैं, दे आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। आपने एक बार सेटलमेंट कर ली तो फिर कोई स्कोप नहीं है। ओके, इफ यू हैव एक्सेप्टेड ए सेटलमेंट देन देयर इज नो स्कोप। इसीलिए यहां पर कंपाउंडेबल ऑफेंस को एक रीजन ये भी है, एक रीजन ये भी है कि यहां पर नहीं लाया जाता। तो ये जो है लोक अदालत, इसका अल्टीमेट ये है, अल्टीमेट, हाँ, एक इट इज इक्विवेलेंट टू अ सिविल कोर्ट ऑर्डर। सिविल कोर्ट के ऑर्डर के इक्विवेलेंट होता है लोक अदालत का सेटलमेंट। ऑलराइट। तो फर्स्ट लोक अदालत जो है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात इन 1982, and this marked the revival of an ancient tradition of amicable dispute resolution, and success of this initiative led to the spread of lok adalat across the country. And Legal Services Authority Act of 1987, it provides lok adalat with statutory status। बहुत इंपॉर्टेंट, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है 1987 की, उसने लोक अदालत को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया, लीगल स्टेटस, बैकिंग। ओके, लीगल बैकिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू द लोक अदालत, एंड दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तालुक लेवल, ऑल लेवल पॉसिबल, हर जगह। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें, अब देखिए ये होता है ना न्याय मेला, सुना है? न्याय महाकुंभ, इस टाइप से सुना है आपने कहीं? उसमें होता क्या है कि एक एक मेला टाइप का लगता है, मेला इन द सेंस कि एक एक इवेंट होता है जिसमें आपको बुलाया जाता है, हाँ, आपको बुलाया जाता है, और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो देयर एंड यू कैन सीक लीगल एडवाइस एज वेल एज यू कैन टॉक टू ए पर्सन विथ whom यू कैन कम टू ए कॉम्प्रोमाइज। ओके, आप अपने जैसे चाचा के साथ लड़ाई है, चाचा को लेके जाओ उस लीगल मेला में, और उस लीगल मेला में बहुत सारे जो है लॉयर्स बैठे रहेंगे, एंड दे विल बी दिस इज समथिंग विच द कोर्ट्स डू फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो दैट जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड टू ऑल। तो वहां पर जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लॉयर्स चेयर पे बैठे हुए हैं। आप उनके पास जाएंगे और बोलेंगे सर मुझे ना ये मेरे चाचा हैं, इनके साथ मेरी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। तो वो आपको बैठाएंगे, बात करेंगे, 1 घंटे के बाद आपका जो है डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। ओके, typically, a Lok Adalat panel consists of serving or retired judicial officer, lawyers, and social workers, which aims to bring a balanced perspective to the resolution process. Okay, देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों हस्बैंड और दोनों वाइफ, ये हस्बैंड एंड वाइफ, उन दोनों का ईगो ना हर्ट हो। आपने देखा है वो जो महिला जो एनसीडब्ल्यू टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, किस ढंग से बात करते हैं? ओके, दे दे ऑलवेज साइड विद द वुमेन इन दिस केस, है ना? सो उसमें क्या होता है, दे बेसिकली ह्यूमिलिएट द मैन, एंड देन द मैन ही स्टार्ट्स हैविंग अ ग्रज। वो ग्रज हो जाता है उसको कि यार ये इसने मुझे इस तरीके से, ओके, इस तरीके से मुझे ह्यूमिलिएट किया सबके सामने, अब तो मैं इसको डाइवोर्स दे के रहूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। लेकिन लोक अदालत में देखिए सोशल वर्कर्स जो होते हैं तो वो सिंपथेटिक होते हैं, वो जो है सिंपथेटिक होते हैं, दे से कि नहीं नहीं आप खाना, ये खाना बनाती है तो आप क्यों नहीं खाते? देखिए, अब यू माइट नॉट रिलेट विद दिस, बट ऑन द लोअर लेवल, लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास में, व्हाई डज द मैरिज ब्रेक डाउन? डज द मैरिज ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ हाई सोसाइटी रीजंस? नो, द मैरिज ब्रेक्स डाउन कि ये रोटी नहीं बनाती, मुझे चावल खाना होता है, और ये आलू की सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल देती है। ओके, ऑल राइट। तो ये जो चीज है, ओके, ये जो चीज है, ऑल राइट, ये जो चीज है, इसमें क्या होता है कि इसको सेटल कराने के लिए लोक अदालत, एक क्वेश्चन उसको ले लेते हैं। अंडर पावर हेड ऑफ लोक अदालत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोक अदालत आर एम्पावर्ड सिमिलरली टू सिविल कोर्ट्स? नहीं, दे आर नॉट बाउंड बट दे हैव द पावर। जैसे ट्राइब्यूनल्स में हमने पढ़ा था ना कि वो अपना एविडेंस समनिंग ये सब चीजें खुद से कर सकते हैं। आपको अगर जाना होता है कोर्ट में तो समन का प्रोसेस होता है ना, कि आपको जज फोन करता है कि कल आ जाना साइडक, कल तुम्हारी पेशी है। ऐसे होता है कि आपको प्रॉपर नोटिस सर्व होता है, फिर आप नोटिस का जवाब देते हैं, फिर आप जो है समन होते हैं, है ना? लेकिन यहां पर क्या है, व्हेन यू आर नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दे कैन कॉल यू एंड से कि कल आ जाना। व्हाई? बिकॉज दे कैन, दे आर फ्लेक्सिबल इन द
प्रोसीजर, बट दे हैव द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? यस, ओके। गांधीयन प्रिंसिपल इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल एंड दैट इज व्हाई दिस लोक अदालत इज देयर। ठीक है। तो ये जो है सोशल वर्कर्स, आप अगर केसेस देखेंगे तो बहुत लोअर लेवल के केसेस आते हैं, मतलब उसने वो तीखा सब्जी बनाती है। आई हैव हर्ड दिस, आई हैव हर्ड दिस माई सेल्फ, कि ये इसके साथ मैं नहीं रहूंगा, ये तीखा सब्जी बनाती है। ओके, तीता सब्जी बनाती है, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपको लग रहा है कि दिस शुड गो, दिस डिजर्व्स द टाइम ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट? नहीं। ओके। अब ये उस पे था भाई, ये ट्विटर पे आ रहा था, लोक अदालत का आता रहता है ना, इफ यू फॉलो इनफ लीगल पीपल, तो उसमें था ये। तो दैट इज व्हाई यू रिक्वायर सोशल वर्कर्स हु आर, ओके, हु आर वेरी वेरी सिंपथेटिक। ओके, आपसे ये नहीं बोलेगा, आपको ह्यूमिलिएट नहीं करेगा, या आपको जेल में नहीं डालेगा, आपसे बोलेगा क्या हो गया, आप उसमें थोड़ा सा चीनी डाल लो, समथिंग लाइक दिस। तो इससे क्या होता है, एक एमिकेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, एमिकेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल राइट, सो दैट देर इज नो इररिट्रीवेबल ब्रेक डाउन। ओके, इररिट्रीवेबल breakdown डाउन ऑफ मैरिज। Lok adalats have the jurisdiction to settle disputes pending before courts or at the pre-litigation stage। मतलब अभी आप कोर्ट गए नहीं हैं, that is pre-litigation stage, so that you can directly go to the lok adalats, or you can, okay, settle disputes which is pending before courts। the thing is the thing is कि ये जो settle disputes किस टाइप के disputes, इट इंक्लूड्स ओनली कंपाउंडेबल ऑफेंस। याद है हमने अभी जस्ट बात किया था, व्हाट आर कंपाउंडेबल एंड व्हाट आर नॉन कंपाउंडेबल। ओके, तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द लोक अदालत्स एंड केसेस कैन बी रेफर्ड टू लोक अदालत if the parties involved agree to settle, one of the parties applies for such referral or the court deems the case suitable for लोक अदालत रेजोल्यूशन। तो कैसे हो सकता है, बोथ पार्टीज जा सकते हैं आपसी सहमति के साथ, बोथ पार्टीज आपसी सहमति के साथ जा सकते हैं। दूसरा चीज क्या होता है, वन ऑफ द पार्टी कैन रेफर, आस्क फॉर ए रेफरल, कि मुझे लोक अदालत जाना है। या तीसरे केस में यू गो टू द जज इन द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देयर द जज सेज कि इसको जाके लोक अदालत से आप सॉल्व कराएं। The judge can also send you to the Lok Adalat saying that this case is suitable for Lok Adalat. Okay, something like this। जैसे मैंने बताया ना, तीखा सब्जी बना देती है, मेरी वाइफ तीखा सब्जी बनाती है, दिस इज, डू यू थिंक दिस डिजर्व्स द टाइम ऑफ द कोर्ट? तो उसमें तुरंत रूलिंग 5 सेकंड के अंदर आएगी, लोक अदालत जाइए आप। ओके, दिस इज नॉट ए, मैं आपका बिचौलिया नहीं हूं कि आप आपका जो छोटे मोटे प्रॉब्लम वो सॉल्व करूंगा। कुछ बिगर प्रॉब्लम होता है तब आप मुझे बताएं, 18-20 साल से सेपरेट रह रहे हैं, या आपको डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, 498A का केस है, दिस डिजर्व, दारू पी के पीटता है, स्टिल इज डोमेस्टिक वायलेंस एंड इट इज सीरियस। दारू पी के पीटता है, ओके, मेरी माँ का पैर नहीं दबाती, दैट इज अनसीरियस। सीरियस इज व्हाट, दारू पी के पीटता है, इट इज सीरियस। ओके, और वो जो है, ओके, मेरे माँ का पैर नहीं दबाती, तीखा सब्जी बनाती है, दैट इज अनसीरियस। ओके, लोक अदालत्स आर empowered similarly to civil courts under the code of civil procedure। empowered है बट नॉट बाउंड, प्लीज रिमेंबर, दे आर empowered, इनके पास सिविल कोर्ट का डिक्री है, जो इनका डिसीजन आता है, दिस हैज ए सिविल कोर्ट डिक्री, बट दे आर नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो समनिंग जो होता है उस टाइप में पटिशन वगैरह की जरूरत नहीं होती, यू कैन जस्ट वॉक इन द लोक अदालत, और वहां पर जाके जो है एक फॉर्म भर के आप अपना केस को सॉल्व करा सकते हैं। वेयर एज इन कोर्ट यू हैव टू फॉलो ए होल डिफरेंट प्रोसीजर। ओके, award issued by lok adalats, they are deemed equivalent to decree of civil court or orders of any other court, making them final and binding on all parties without the provision for appeal। ध्यान से सुनिएगा, आपको किसी ने झापड़ मारा, आपने उससे 1 लाख रुपए ले लिए, लोक अदालत में सेटलमेंट करा दिया, कैन यू गो अगेन एंड से कि मेरा माइंड बदल गया, मुझे 1 लाख रुपए नहीं, जस्टिस चाहिए, मुझे इसको जेल में देखना है? नहीं,
1 लाख रुपए ले लिए, केस इज फॉर एवर क्लोज्ड। ओके, इसीलिए ना कंपाउंडेबल केसेस ही जाते हैं विथ एंड विदाउट द कोर्ट्स अप्रूवल। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, आइदर द कोर्ट कैन अप्रूव और द कोर्ट कैन नॉट अप्रूव। पूछा जाता है आपसे, जब आप जाते हैं ना, पूछा जाएगा आपसे हाई कोर्ट के सामने। जज साहब पूछेंगे, आर यू हैप्पी विद द लोक अदालत सेटलमेंट? ओके, आर यू हैप्पी with the lok adalat settlement? If you'll say yes, the case is forever closed. आपका माइंड 10 दिन 20 दिन 1 साल के बाद चेंज नहीं हो सकता। यू कैन नॉट गो एंड से कि आई वांट जस्टिस, दिस मनी इज नो यूज टू मी। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोक अदालत? देयर इज अ नेशनल लोक अदालत, जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से लेके तालुक कोर्ट तक हर लेवल पे आप देख सकते हो। और हर मंथ सिंस 2015 दे फोकस ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ईच मंथ। तो जैसे एक महीने, जनवरी के महीने में मैरिटल डिस्प्यूट हो गया, फरवरी के महीने में लैंड डिस्प्यूट हो गया, मार्च के महीने में लेबर डिस्प्यूट, अप्रैल के महीने में कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, ऐसे करते करते हर महीने ये जो चीजें हैं उसको कट डाउन करते हैं, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देन यू हैव द स्टेट लोक अदालत विच आर द रेगुलर लोक अदालत, and these are further classified into continuous lok adalat. They operate continuously for a set number of days, allowing parties to consider the settlement terms. उनको क्या कहा जाता है कि हम जो है 10 तारीख तक ऑपरेट होगा, आज 2 तारीख है, 8 दिन है आपके पास, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट उसके पहले आ जाना, हम सेटलमेंट करा देंगे। बट उसके बाद जो है देयर माइट बी एन इशू। देन देर इज अ डेली लोक अदालत, जो डेली बेसिस पे होता है। तो बेसिकली क्या होता है, कोर्ट के आसपास जो है, कोर्ट के अंदर प्रेमाइसेस के अंदर क्या होता है ना, कि चेयर्स लगा देते हैं। ओके, दिस जनरली हैपेंस, और उसको बोलते हैं यहाँ पर लोक अदालत है। तो अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि देखो वहां से राइट ले लेना, तो लोक अदालत वहां चलती है, वहां पर चले जाओ और वहीं पर बैठ के अपना मैटर सुलझा लो। देन देर आर मोबाइल लोक अदालत। तो बेसिकली एक वैन जो होता है, थोड़ा जो बड़ा वैन होता है आपका, उसमें कुछ जो है आपके सोशल वर्कर्स और जो यंग एडवोकेट्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, दे बेसिकली मूव अराउंड और पेटी केसेस और लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए करते हैं, समथिंग वॉलंटियर, यस वॉलंटियर होता है। देन मेगा लोक अदालत, इट इज हेल्ड साइमल्टेनियसली अक्रॉस ऑल कोर्ट्स इन अ स्टेट ऑन अ सिंगल डे। याद है मैंने बताया था महाकुंभ, न्याय का महाकुंभ या न्याय कुंभ या न्याय मेला, समथिंग लाइक दिस। जिसमें देखिए होता क्या है ना कि इंडिया में जब तक इस लेवल पे स्वच्छ भारत अभियान, अगर उस लेवल पे बात नहीं हो रही है तो कोई अपना कचरा नहीं फेंकेगा। तो एवरीथिंग इन इंडिया हैज टू बी एट अ लार्ज स्केल। तो अगर पेपर में आ गया कि हाई कोर्ट में होने वाला है, ओके दिस थिंग, न्याय मेला, तो एवरीबडी विल गेट अट्रैक्टेड। अरे यार, मेरे वो 15 साल पुरानी केस जो है, भले दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट, फिर भी वो कहेंगे हाँ यार यहाँ चलते हैं, 15 साल पुराना केस सॉल्व हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। देन देर आर परमानेंट लोक अदालत हु फोकस ऑन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ओके, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा, मैंने इतना एसी नहीं चलाया, मेरा 50,000 कैसे आ गया, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस पे फोकस करती है, ये परमानेंट इन नेचर हो। ओके, सो लोक अदालत जो है, ओके लोक अदालत, इसमें जो लोग होते हैं वो कैसे आते हैं, सपोज जो सोशल वर्कर हैं वो कैसे आते हैं। तो बेसिकली आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है एज अ सोशल वर्कर, और इसमें आई व्हेन आई वाज इन लॉ कॉलेज, जब मैं लॉ कॉलेज में था, तो वी हैड दिस लीगल सर्विसेज सेल। तो लीगल सर्विसेज सेल जो होता था उसके बच्चे जाते थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वहां पर जाके दे यूज टू, बिकॉज आप जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ाई कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है आपको लॉ का, थोड़ा बहुत जो है लॉ का नॉलेज आ जाता है। तो वहां पर जो है आप, आपका सीवी में काम करता है। तो मेनी पीपल, ओके मेनी पीपल, दे विल बी देयर। ओके, और इसमें क्या होता है, ओके इसमें जो है वॉलंटियर्स आर देयर, देयर आर वॉलंटियर्स। तो उसमें देयर आर पीपल हु आर लॉ स्टूडेंट्स, हु आर न्यूली मिंटेड लॉयर्स, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए और अपना नाम ज्यादा बढ़ाने के लिए वो जो है अपना वॉलंटियरशिप करते हैं। ओके,
दूसरा चीज होता है कि चेयरपर्सन, देयर इज, जो परमानेंट लोक अदालत है उसमें एक चेयरपर्सन होता है और उसके साथ मेंबर्स होते हैं, जो आपके सोशल वर्कर हो गए। तो सोशल वर्कर जो अपने फोर्टीज में है वो अपना समय क्यों बर्बाद करेगा, है ना? वो तो कहीं पर दूसरे जगह काम कर सकता है, एनजीओ वगैरह में, ऑन ए सैलरी। तो उनके लिए जो है, ओके, उनके लिए 500 रुपये पर डे का फिक्स्ड है। और चेयरपर्सन जो है, हु बेसिकली इज अ फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज, और कोई जो लीगल ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। ओके, उसको जो है प्रॉपर सैलरी दी जाती है चेयरपर्सन को, 70,000, 80,000, 90,000, वॉट एवर दैट इज। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस होता है मैरिज काउंसलिंग में, या जिनका एक्सपीरियंस होता है ऑल दीज थिंग्स, तो उनको 500 रुपये पर डे, और उसके साथ साथ महीने का आने जाने का खर्चा, जो उनका पेट्रोल लगा, ये सारी चीजों का खर्चा जो है मेंबर्स को दे दिया जाता है। लेकिन बल्क of the लोक अदालत people are volunteers. They are law students, newly minted lawyers, people who are looking to further their CV। उसमें क्योंकि सीवी में भी लिख लेते हैं बहुत सारे लोग कि आई आई पार्टिसिपेटेड इन लोक अदालत एज अ वॉलंटियर, समथिंग लाइक दिस। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। मेंबर्स को पैसा मिलता है 500 रुपये पर डे के हिसाब से, और मंथली कुछ 3,000, 2,000 रुपये मिलता है उनको आने जाने का खर्चा, फ्रॉम देयर होम टू द लोक अदालत वेन्यू। बाकी जो है वॉलंटियर्स को कुछ पैसा नहीं मिलता, वॉलंटियर्स आर देयर ऑन देयर ओन अकॉर्ड। ओके, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लोक अदालत? कोई कोर्ट फीस नहीं है, और कोई भी फीस अगर पे की गई है, उसको जब डिस्प्यूट सेटल हो जाता है लोक अदालत में, तो कोर्ट फीस जो आपने पहले पे की है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वो वापस हो जाएगी। देन देर इज अ प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीडी ट्रायल, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद जज, एंड द अवार्ड इज बाइंडिंग एंड फाइनल। क्या ये चीज क्लियर है? अब जो है देखिए, जब लोक अदालत इनिशियली आया था तो वो टेम्पररी इन नेचर था, बट इसका इतना ज्यादा सक्सेस हुआ, द सक्सेस वाज सो हाई दैट वी मूव टुवर्ड्स परमानेंट लोक अदालत। और परमानेंट लोक अदालत जो है, इट वाज स्पेसिफिकली डिजाइन टू एड्रेस डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, and it was established through an amendment to the Legal Services Authorities Act, okay, in 2002। तो इसको जो है 2002 में अमेंडमेंट किया गया था LSAA में, दैट इज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। और उसके बाद वी गॉट द परमानेंट लोक अदालत। वाई? बिकॉज जो लोक अदालत का कंसेप्ट है, इट वाज ए रोरिंग सक्सेस इन मेनी स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स में फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वाज देयर। एक चीज बताता हूँ आपको, I have a relative. Okay, she became a judge recently, and she basically ruled on a case from 1914. She was a judge, okay, a civil court judge, and she ruled on a 1914 case. तो आपको लग रहा है कि ये इस सिचुएशन में, जब इंडिया में ऐसे केसेस हैं विच आर रनिंग सिंस द 1800s, विच आर रनिंग सिंस द अर्ली 1900s, तो हमें लोक अदालत की बहुत जरूरत है। ओके, सो ये चीज जो है, ओके, ये चीज जो है, दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैड ब्लड सिर्फ लिटिगेंट्स के बीच में नहीं होता है। आपके और मेरे बीच में बैड ब्लड नहीं होगा, हमारे बच्चे उनके बच्चों में बैड ब्लड कंटिन्यू रहेगा। इट डज नॉट डाई विथ द दुश्मनी दैट वी हैव, इट इज कैरीड ऑन फॉर जनरेशंस। तो ये, और किसके लिए? 2 बीघा लैंड के लिए उस पे एक आम का बगान लगा दिया, समथिंग लाइक दिस, रैंडम थिंग्स। ओके, so salient features of permanent lok adalat: it is chaired by a current or former district judge, additional district judge, or an individual who has held a judicial office higher than that of a district judge। इस केस में जो है इनको सैलरीज मिलती है। ओके, सैलरी पे रहते हैं ये परमानेंट लोक अदालत में। Two other members with substantial experience in public utility services complement the chairman. Okay, and they have the authority over disputes involving public utility service such as transportation, एयर, रोड, वाटर। मैंने बस ली थी, बस वाले ने मुझसे 100 रुपए लेके 30 रुपए ही वापस किया, समथिंग लाइक दिस, इस लेवल के केसेस। या बिजली विभाग ने मुझे 50,000 का बिल भेजा,
मैंने इतना यूज नहीं किया था, समथिंग लाइक दिस। ओके, और ये जो है, अब यहां पर 1 करोड़ रुपीस तक का डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है। पहले 10 लाख था, अब जो है 1 करोड़ रुपीस तक का डिस्प्यूट आप परमानेंट लोक अदालत में खत्म कर सकते हो। एंड पार्टीज टू अ डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कैन अप्रोच पीएलएस बिफोर कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होता है ना, उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो बिफोर अप्रोचिंग द कोर्ट यू कैन अप्रोच द परमानेंट लोक अदालत। ओके, नॉर्मल लोक अदालत में हमने क्या देखा था, आपने कोर्ट में कुछ चल रहा है और फिर आप गए लोक अदालत। यहां पर क्या हो रहा है, परमानेंट लोक अदालत जो है, पीएलए, दैट इज परमानेंट लोक अदालत, इट कैन बी अप्रोच डायरेक्टली। दिस इज इंपॉर्टेंट। इट कैन बी व्हाट इट कैन बी अप्रोच्ड डायरेक्टली। Once an application is filed with a PLA, parties are barred from seeking concurrent redressal from any court regarding the same dispute. Okay? एक बार एप्लीकेशन आपने फाइल कर दिया पीएलए में, परमानेंट लोक अदालत में, देन यू कैन नॉट सीक कॉन्करेंट रिड्रेसल फ्रॉम एनी कोर्ट। वो मैटर पीएलए में ही चलेगा, परमानेंट लोक अदालत में। ओके, और यहां पर क्या होता है कि पीएलए जो है वो सेटलमेंट के लिए प्रपोज करती है। वो कहती है कि ठीक है, तुमने 50,000 का बिल आया है, तुम 30,000 दे सकते हो। आप कहेंगे हाँ जी मैं 30,000 दे सकता हूं, देन 30,000 यू विल सेटल एंड द कोर्ट द केस विल सीज। बट सपोज द 50,000 इज द बिल एंड द court asks you ki, can you give 30,000, and you say no, I will not give 30,000, then in absence of settlement will be there, and in that case also the PLAs are empowered to adjudicate the dispute on merits, और उसके साथ जो है फाइनल एक डिसाइसिव रेजोल्यूशन जो है इसको दे दिया जाता है। कि फाइनल आपको बोल दिया जाएगा कि 15,000 जमा करो, दैट्स इट, और आपकी सुनवाई आगे नहीं होगी। अवार्ड्स इशूड बाय पीएलएस आर फाइनल एंड बाइंडिंग। तो ये कहां पर होता है, किसके लिए होता है, प्लीज रिमेंबर दिस इज फॉर पब्लिक यूटिलिटीज। ये किसके लिए होता है, पब्लिक यूटिलिटीज के लिए होता है। PLAs do not have jurisdiction over matters related to offense that are non-compoundable under law, जैसे मर्डर, डकैती, सीरियस नेचर ऑफ क्राइम। ओके, और एक क्लियर बाउंड्री है यहां पर ऑफ ऑपरेशनल स्कोप। दे कैन ओनली एंड ओनली एडजुडिकेट ऑन disputes which are compoundable, okay, which can be settled outside the court। okay, उसके साथ साथ हमारे पास फैमिली कोर्ट्स का भी कंसेप्ट है। सो फैमिली कोर्ट्स जो है, ये फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984 के थ्रू इनेक्ट हुआ था, और इसका काम क्या है, रिजॉल्विंग फैमिली डिस्प्यूट्स एफिशिएंटली एंड हार्मोनियसली। तो फैमिली डिस्प्यूट्स पहले कहाँ जाते थे, इन द इनिशियल टाइम्स द फैमिली डिस्प्यूट्स दे यूज्ड टू गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन दे यूज्ड टू गो टू द हाई कोर्ट। उसके लिए क्या किया गया, एक और हायरार्की क्रिएट की गई कि अब जो है वाया द फैमिली कोर्ट्स एक्ट एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है ऑफ अ फैमिली कोर्ट, और वहां पर फैमिली डिस्प्यूट जो है उसको एफिशिएंटली एंड हार्मोनियसली हम टैकल करेंगे। ओके, ये लॉ कमीशन का 59th रिपोर्ट का रिकमेंडेशन था, विच सेड कि वी नीड अ डिफरेंट अप्रोच टू फैमिली डिस्प्यूट। एक चीज समझिएगा, हाई कोर्ट जो है वहां पर किस टाइप के केसेस एडजुडिकेट होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में मर्डर, रॉबरी, डकैती, एंड दिस रिक्वायर्स हैवी हैंडेड अप्रोच, यस और नो। उसमें आपको क्या रहता है, हैवी हैंडेड अप्रोच की जरूरत होती है, जहां पर यू हैव टू बी वेरी वेरी, हाउ टू से दिस, बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन क्या फैमिली डिस्प्यूट्स को सेम लेंस से देखना चाहिए, शुड द फैमिली डिस्प्यूट्स बी एडजुडिकेटेड विद द सेम विगर दैट यू आर एडजुडिकेटिंग अ मर्डर और अ डकैती। तो उसके लिए क्या है, दे सेड कि एक अलग से कोर्ट होना चाहिए। वाई, बिकॉज फैमिली डिस्प्यूट्स नीड ए जेंटल हैंड, they cannot go through the same rigors as that of a murder case. Why? Because families can break down due to this. Okay, so what are the key features? So state governments, they are mandated to establish family courts, particularly in cities जहां पर
पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर जो है फैमिली कोर्ट जो है आपको, ओके, वहां पर बनाना होगा। अभी जैसे मुंबई है, तो मुंबई हैज बिकम ए मेगापोलिस, बहुत बड़ी सिटी बन चुकी है, तो वहां पर ऑलरेडी जो फैमिली कोर्ट है वो ओवर बर्डन हो गए थे। ओके, वो क्या हो गए थे, वहां पर ओवर बर्डन हो गए थे, इसीलिए 6 नए फैमिली कोर्ट का नोटिफिकेशन आया। वहां पर जो है 6 नए, ओके, फैमिली कोर्ट का नोटिफिकेशन आया, ताकि बर्डन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या हो जाए, बर्डन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इसके अंदर फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अंदर जितने भी 1 मिलियन, ओके, 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, 10 लाख से ज्यादा, वहां पर आपको, ओके, वहां पर आपको फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश करना है। एंड इनका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्या होगा, रिलेटिंग टू मैरिज, मैट्रिमोनियल रिलीफ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बिटवीन स्पाउसेस, लेजिटिमेसी, गार्डियनशिप, मेंटेनेंस इशू। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, देन कॉन्सिलेशन एफर्ट, फैमिली कोर्ट्स का मैंडेट जो है उसमें पहला स्टेप है रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन पार्टीज। इसीलिए इंडिया में प्रॉब्लम होती है डाइवोर्स लेने में। इंडिया जो है, अमेरिका में नो फॉल्ट डाइवोर्स का सीन है। अमेरिका में जो है देयर इज अ सीन ऑफ नो फॉल्ट डिवोर्स, मतलब आपको नहीं रहना है तो नहीं रहना है, यू कैन जस्ट गो एंड अप्लाई फॉर अ डाइवोर्स, इट इज गिवन टू यू। इंडिया में क्या होता है, रिकॉन्सिलिएशन इज द फर्स्ट स्टेज। आपको बोला जाता है 18 महीने साथ रहने की कोशिश करो, 6 महीने साथ रहने की कोशिश करो, 12 महीने, 1 साल साथ रहने की कोशिश करो, उसके बाद आना। ओके, उसके बाद आना। और यहां पर जो है, ओके, यहाँ पर जो है रिकंसिलिएशन इज द फर्स्ट स्टेप। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं। ओके, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में देर इज अ थिंग ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड। आप जो है एक बेसिकली कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, वेटिंग, मैंडेटरी वेटिंग पीरियड होता है। और उस केस में जो है पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिलती है रिकॉन्साइल करने के लिए। बट हमने कभी देखा है कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड वेव ऑफ हुआ है? कूलिंग ऑफ पीरियड वेव ऑफ याद है आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस में मैंने बताया था, आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस के अंदर आया था। यस, ओके। देन एसोसिएशन विद सोशल वेलफेयर, फैमिली कोर्ट्स जो है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है सोशल वेलफेयर एजेंसीज के साथ, काउंसलर्स के साथ, एंड एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन एंड वेलफेयर ड्यूरिंग द कॉन्सिलिएशन स्टेज टू एड इन अचीविंग एमिकेबल सेटलमेंट्स। एमिकेबल सेटलमेंट क्या, जहां पर हस्बैंड वाइफ कोई विनर नहीं है, बोथ आर इक्वली सेटिस्फाइड, and parties do not have the right to be represented by a legal practitioner by default। मतलब वहां पर बोला जाता है फैमिली कोर्ट में कि इफ पॉसिबल प्लीज कम अलोन विदाउट ए लीगल प्रैक्टिशनर, विदाउट ए लॉयर। ओके, ऑल राइट। However, courts can appoint legal experts as amicus curiae in interest of justice। अगर ऐसा लगेगा कोर्ट को कि प्रॉब्लम हो रही है, ओके, और यहां पर जरूरत है किसी लॉयर की, तो दे कैन अपॉइंट अ पर्सन। ऑल राइट। और एमिकस क्यूरी का मतलब क्या होता है, एमिकस क्यूरी का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एमिकस क्यूरी इज द लैटिन वर्ड फॉर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ओके, सो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। और उसके साथ साथ एमिकस क्यूरी जो है वो हेल्प करता है कोर्ट को मैटर सॉल्व करने के लिए। वो क्या करता है, हेल्प करता है मैटर सॉल्व करने के लिए। वी ऑल्सो हैव सिंप्लीफाइड प्रोसीजर हेयर, और ओनली वन राइट ऑफ अपील एग्जिस्ट फॉर द फैमिली कोर्ट ऑर्डर, एंड दैट इज टू द हाई कोर्ट। दैट इज टू whom? That is to the high court, and this streamlines the resolution process and minimize prolonged litigation। अब कैसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है, पहले 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, ऐसे करके आप ऊपर जाओ हाई कोर्ट के पास। यहां पर क्या, डायरेक्ट जाओ फैमिली कोर्ट के पास, नहीं सेटिस्फाइड हो, एक अपील एग्जिस्ट करेगा कहां पर, हाई कोर्ट के पास। इज दिस क्लियर? क्या फैमिली कोर्ट क्लियर है? ओके, अब जो है ग्राम न्यायालय देखते हैं। सो ग्राम न्यायालय, दिस वाज थ्रू द 2008 एक्ट, ग्राम न्यायालय एक्ट। और ये जो है एक्सेस टू जस्टिस देना, ओके, सो दैट इवन इन द पुअर एंड डिसएडवांटेज रूरल एरियाज यू कैन गेट द एक्सेस टू जस्टिस। और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड बेस्ड ऑन द लॉ कमीशन 114th रिपोर्ट। ओके, एंड विजन क्या है बिहाइंड ग्राम न्यायालय?
कि आपके घर के सामने जस्टिस मिलेगा, मतलब घर के सामने मतलब घर के पास, ओके। जस्टिस विल बी डिलीवर्ड टू यू नियर योर हाउस। आपको जो है, देखिए होता क्या है, किसान है, क्या वो जा सकता है अपनी किसानी छोड़ के कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने? नहीं लगा सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जस्टिस नहीं मिल पाता उस केस में। तो इसके लिए क्या करते हैं, सो दैट रूरल एरियाज में, ओके, हु आर द पुअर एंड हु आर द इलिटरेट, दे कैन ऑल्सो गेट द राइट टू जस्टिस एट द ग्रास रूट लेवल। और ये जो ग्राम न्यायालय है, इनका प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है ताकि सभी लोग समझ पाए, ओके, सभी लोग जो है समझ पाए, इसीलिए इनका प्रोसीजर बहुत सिंपल कर दिया जाता है। और ये लोकल डिस्प्यूट्स विद इन द कम्युनिटी उसको सॉल्व करते हैं, ओके। एंड दे फॉस्टर ए सेंस ऑफ जस्टिस एंड रिकॉन्सिलिएशन इन रूरल एरियाज। और उसके साथ साथ ग्राम न्यायालय हेल्प करता है जो बर्डन है कन्वेंशनल कोर्ट सिस्टम पे, वो रिड्यूस हो जाए। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम खाप, दिस हैज अ स्टैट्यूटरी बैकिंग, खाप इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी डिवाइस, ओके, दैट डज नॉट हैव ए बैकिंग। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्राम न्यायालय एक्ट? तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जिसको, ओके, न्यायाधिकारी कहते हैं, who is equivalent to judicial magistrate first class, and he is appointed by the state government in consultation with the high court. And they are gram nyalay, they are established for every panchayat at the intermediary level, और एक ग्रुप ऑफ कंटिगुअस पंचायत, मतलब या तो एक बड़े पंचायत के लिए, या अगर छोटे छोटे बहुत सारे पंचायत हैं उनके लिए एक ग्राम न्यायालय। एंड दिस विल केटर स्पेसिफिकली टू द रूरल jurisdiction. And the Nyadhikaris, they will possess the same power, draw the same salary, and perform roles which are similar to the first class magistrate under high court, okay। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स जो होंगे अंडर हाई कोर्ट, उनके सेम, उनके सिमिलर इनका जो है पावर होगा। एंड इनका जो न्याय, जो ग्राम न्यायालय होता है, वो मोबाइल कोर्ट होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आप जो है जा सकते हैं। बेसिकली चेयर, कुर्सी, टेबल, दैट्स ऑल यू नीड। when we talk about the gram न्यायालय, चेयर, कुर्सी, टेबल इज ऑल यू नीड टू इंश्योर जस्टिस इज डिलीवर्ड एट द डोर स्टेप। They handle both criminal and civil cases, including disputes and claims, which are specified in the first and second schedule of the Gram Nyalay Act, with the central and state government having the authority to amend. Because Gram Nyalay Act के थ्रू बना है, since ये जो है ग्राम न्यायालय एक्ट के थ्रू बना है, what we see here is that कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन पे अपना कंट्रोल डाल सकते हैं, इन पे जो है क्या अपना कंट्रोल जा सकते हैं, दे सकते हैं। और मोबाइल कोर्ट्स है, मोबाइल कोर्ट्स का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह आप घूम सकते हैं। एंड इन क्रिमिनल ट्रायल्स ग्राम न्यायालय फॉलो ए समरी प्रोसीजर टू एक्सपेडाइट द जस्टिस डिलीवरी प्रोसेस। तो क्रिमिनल केसेस, किस टाइप के क्रिमिनल केसेस, क्या यहाँ पर जो ग्राम न्यायालय है, क्या वो सीरियस क्रिमिनल केसेस को देख सकता है? सीरियस क्रिमिनल केसेस को नहीं देख सकता है, ओके। सीरियस क्रिमिनल केसेस को नहीं देख सकता है, ये दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट कि सीरियस क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, दे हैव टू गो टू द नॉर्मल रूट। ये जो है बेसिकली पेटी, ओके, पेटी जो है क्रिमिनल केसेस, उसको जो है वो देख सकता है, ऑल राइट। जो भी इसके एक्ट में है, ऑफेंसेस विच आर नॉट पनिशेबल विथ डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से कम के जितने भी इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस हैं, वो इसको हैंडल कर सकता है, ओके। लेकिन जो बहुत ज्यादा जो बड़े केसेस होते हैं उनको हैंडल नहीं करेगा। तो विच काइंड ऑफ क्रिमिनल केसेस विल बी हैंडल्ड बाय द ग्राम न्यायालय फ्रेंड्स? उसमें अगर आप देखेंगे, या तो इट शुड नॉट बी पनिशेबल बाय डेथ, उसके साथ साथ इट शुड नॉट बी पनिशेबल बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और व्हाट इज द लिमिट, इट शुड नॉट इन बी मोर देन 2 years। 2 साल से ज्यादा की सजा उस केस में नहीं होनी चाहिए, 2 साल से ज्यादा की सजा उस केस में नहीं होनी चाहिए। ग्राम न्यायालय सिर्फ ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस को हैंडल कर सकता है जहां पर 2 साल से कम की सजा है, ओके। एंड दे एक्सरसाइज पावर्स विच आर सिमिलर टू सिविल कोर्ट with certain modification,
and they adhere to special procedures which are highlighted in the ग्राम न्यायालय एक्ट ओनली. ओके, इसमें जो है ग्राम न्यायालय एक्ट, ये बेसिकली समरी ट्रायल प्रोसीजर, दे फॉलो समथिंग कॉल्ड एज द summary trial procedure, and this is stipulated in which section 19 of the act. Okay, सेक्शन 19 ऑफ द ग्राम न्यायालय एक्ट में ये प्रेजेंट है. और ये जो है बेसिकली ये समरी ट्रायल प्रोसीजर किसके लिए होता है? ये क्रिमिनल केसेस के लिए होता है, क्योंकि सिविल केसेस में उतना कोई प्रोसीजर की जरूरत नहीं है आपको. दैट कैन बी सेटल्ड एमिकेबली. बट इन क्रिमिनल केसेस विच आर लेस देन 2 years इन इम्प्रिजनमेंट, यू रिक्वायर ए प्रोसीजर. सो दे यूज द समरी ट्रायल प्रोसीजर इन द क्रिमिनल केसेस. ओके, उसके साथ साथ देयर कैन ऑल्सो बी प्ली बार्गेनिंग. What is plea bargaining? It is allowed. ग्राम न्यायालय में plea bargaining is allowed. So this allow the accused person to apply for a plea. मतलब ठीक है जी, मैंने मानता हूं मैंने गलती कर दी, इतना का सजा मुझे दे दो. ओके, और मैं अपनी गलती मान लूंगा. सो प्ली, व्हेन यू एंटर अ प्ली डील या प्ली बार्गेनिंग, तो आप जो है अपनी गलती मान के सजा के लिए बार्गेन कर सकते हो, कितना सजा मिलना है. ओके, द ग्राम न्यायालय विल टेल यू कि इतनी सजा काटनी होगी आपको अगर आप गलती मान लेते हो. देन यू से ठीक है जी, मैं गलती मान लेता हूं. ओके, समथिंग लाइक दिस, 3 दिन 4 दिन 1 दिन के लिए मैं जेल चला जाऊंगा. ओके, they are not bound by the Indian Evidence Act 1872, and they are guided by the principles of natural justice, allowing for a more flexible approach. And criminal cases का अपील कहाँ रहता है? It is with the court of session. और civil cases का अपील district court में जाता है ग्राम न्यायालय से. And both to be heard within 6 months from the date of appeal filing. Within 6 महीने जो आप अपील फाइल करते हो तो वो सुनना पड़ेगा, ताकि ग्राम न्यायालय का इफेक्ट रहे. ओके, सो इस चीज को समझिएगा. और जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड समरली एंड दे आर रिगार्डेड एज डिक्री. जो ग्राम न्यायालय होता है उसका जजमेंट डिक्री की तरह देखा जाता है. ओके, तो ये प्ली बार्गेनिंग हमने देख लिया. एंड ग्राम न्यायालय आर कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. इसको याद रखिएगा. दे आर सेट अप एट एवरी पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल और अ ग्रुप ऑफ कंटिगुअस पंचायत. ये सब हमने पढ़ लिया. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट विच मस्ट कंसल्ट विद देयर हाई कोर्ट ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम न्यायालय. ओके, प्लीज रिमेंबर, एक्ट जो है ग्राम न्यायालय, इट डज नॉट मैंडेट द कंपल्सरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज कोर्ट्स. उसके साथ क्या होता है प्रॉब्लम? किसी किसी स्टेट में ग्राम न्यायालय है और किसी किसी स्टेट में ग्राम न्यायालय नहीं है. एक क्या क्या चैलेंज है? नॉन मैंडेटरी नेचर, इट इज अप टू द स्टेट वेदर दे वांट टू एस्टैब्लिश और नॉट. इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, उसके साथ साथ लॉजिस्टिकल इश्यूज भी बहुत सारे हैं. ओके, ऑल राइट. सो आई थिंक एक लास्ट हमारा टॉपिक बचा है कमर्शियल कोर्ट. तो कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के थ्रू जो है कमर्शियल कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, सो दैट हाई वैल्यू कमर्शियल डिस्प्यूट्स, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट कैन आई से, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. कि आपका जो कमर्शियल डिस्प्यूट है जितना जल्दी सॉल्व होगा उतना जल्दी जो है आपका इंडिया का जो बिजनेस का सीन है वो बेटर होगा. ऑलराइट, तो ये हाई वैल्यू कॉम्प्लेक्स कमर्शियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज देयर वॉज अ नीड फॉर ए डेडिकेटेड मैकेनिज्म, the courts, the High Court and the Supreme Court, they were not competent enough, it was felt, to settle these commercial dispute जिसमें बहुत सारे nuances होते हैं. लॉ कमीशन का 253rd रिपोर्ट का रिकमेंडेशन था टू एस्टैब्लिश द कमर्शियल कोर्ट, और इसके थ्रू जो है कमर्शियल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द कमर्शियल कोर्ट, और इन हाई कोर्ट्स विथ ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल आप कमर्शियल सिविल कोर्ट डाल सकते हैं. और for territories outside the ordinary original civil jurisdiction of high court, state government also can make an commercial appellate court. मतलब अगर आप नीचे वाले कोर्ट के जो जजमेंट है उसके फेवर में नहीं है तो एक अलग से अपील कोर्ट भी
इन्होंने बना रखा है विच इज डेडिकेटेड टू द कमर्शियल डिस्प्यूट्स। आपको हाई कोर्ट जाके वहां समझाना नहीं पड़ेगा जज को। देयर विल बी अ कमर्शियल अपील्स कोर्ट, जहां पर आप जाके, जो जज है ही विल बी अ पर्सन हु इज वेल वर्स्ड विद द कमर्शियल लॉज। ओके, ऑल राइट, क्या ये चीज क्लियर है? ऑल राइट। और स्पेसिफाइड वैल्यू क्या है? स्पेसिफाइड वैल्यू जो है 3 लाख से ऊपर के डिस्प्यूट्स आप ले जा सकते हैं, 3 लाख एंड अबव। मिनिमम फ्लोर है कितना? 3 लाख। पहले 1 करोड़ था, अब उसको 3 लाख कर दिया गया। मतलब 3 लाख जो है उससे ज्यादा, ओके, 3 लाख और उससे ज्यादा जितने भी आपके कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, यू कैन टेक इट देयर। उससे नीचे का पेटी केसेस में आ जाएगा। ओके, एंड बिफोर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट, उसमें दैट डज नॉट रिक्वायर अर्जेंट इंटरिम रिलीफ, पार्टी मस्ट अंडरगो कंपल्सरी मेडिएशन, इंट्रोड्यूसिंग ए प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म। बिफोर फाइलिंग द केस आपको जो है क्या करना पड़ेगा? आपको मेडिएशन में जाना पड़ेगा, सो दैट इट कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली विदाउट गोइंग टू द कमर्शियल सेटलमेंट डिस्प्यूट के कोर्ट। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्पावर अथॉरिटीज अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 फॉर द पर्पस ऑफ प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर फाइलिंग कमर्शियल अपेलेट कोर्ट में जो अपील है उसको फाइल करने से पहले आप जो है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप एक मेडिएशन करें। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली ये पास हुआ है, 2015 में ये एक्ट पास हुआ है। ओके,